A very good morning to the students and everyone who are watching this video. I am your teacher from Shivaji Group of Institution. We welcome you all in the online classes. The students, this is your English language period, and as we know that we are continuing your second term course. So students, we have started second term course with the chapter number 7, article A and the. Okay. As we have already completed this chapter in the audio classes, this was the recall section of your this chapter. Okay, articles. As we know that articles are the word that refers to a noun or a specific or not. Articles में बताता है कोई भी noun specific है या नहीं. Okay, articles हमारे दो तरह के होते हैं. Definite, indefinite. ओके, कितने तरह के होते हैं? डेफिनेट और इनडेफिनेट. ओके, डेफिनेट आर्टिकल्स हमें बताते हैं नाउन इज स्पेसिफिक. ओके, और इनडेफिनेट हमें बताते हैं नाउन इज नॉट स्पेसिफिक. ओके, and in our English language there are only three types of article, a and the. Okay, and when we use a article with consonants, you know consonants, there are 26 alphabets in English, 25 are vowel and 21 remaining are consonants. Vowel कौन से? A, E, I, O, U. Okay, or remaining are 21 are vowel. So we use A with consonants and with vowel, or the with special things. Okay, special things. Okay, and in the book here are some cases that where we use article the and where we don't use article the. Okay, so here are the some cases where we use article the. The का use हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? The का use हम historical monuments में कर सकते हैं. Historical monuments में, okay? Newspapers में कर सकते हैं. Epics में कर सकते हैं. Families में कर सकते हैं. Trains में कर सकते हैं. Okay? With the trains. Seas के साथ कर सकते हैं. With the seas. और वो नाउन जो हमारे सेंटेंस में एक ही बार मीन्स एक नाउन हमारे सेंटेंस में दो बार लिखी जाती है, तो सेकंड टाइम के साथ हम लोग द का यूज करते हैं कंपल्सरी. ओके, देन बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज विद सुपरलेटिव डिग्रीज. ओके, जैसे बेस्ट, फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके, and then that is used before some higher post or designation, जैसे the prime minister, the president. So with all these higher post or designation we use the. Okay, last one, when we talk about any noun for the first time use, जब हम किसी भी नाउन एक सेंटेंस में किसी भी नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम उसमें a और and का यूज कर सकते हैं नॉर्मली. लेकिन जब वही नाउन हमारी रिपीट होती है उस सेंटेंस में दूसरी बार, तो उसके साथ हम the यूज करते हैं. Okay, so we have already studied about these things that where we use article the. Now we will read about the cases where we don't use article the. अब हम ये पढ़ेंगे जहाँ पे हम the का यूज नहीं कर सकते हैं. Just like general words, honesty is the best policy, apple is good for health, apple a day makes a doctor away. तो यहाँ पे हम the का यूज नहीं करते. जनरल वर्ड्स में हम the का यूज नहीं करते.
जनरल वर्ड्स, ओके, द का यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, विद मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, विद मील्स ऑफ चर्चेस, हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, देन पॉजिटिव नाउन के साथ हम लोग द का यूज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज द विद द प्रोफेशंस, with the name of shop and restaurant, and with mountains and islands we don't use the. Okay, so we have completed this chapter article, and we have already completed about one more chapter, which is adjectives in our last classes. So let's recall that next chapter. So after the seventh chapter, let me. So here is chapter number 8, adjectives. Okay, means what are adjectives? We call adjectives in Hindi विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं. So the same thing in English, that describes noun. Okay, the word that describes noun are adjectives. And they are also known as the describing words. So examples: she is a, Rita is a pretty girl. So Rita is described by a word pretty, कि वो pretty है. Okay. Second thing, this building is tall. बिल्डिंग को किससे डिफाइन कर रहा है? मीन्स किस चीज से डिस्क्राइब कर रहा है? टॉल से, कि ये बिल्डिंग टॉल है. Just like the words that describe the noun are called adjectives. Okay, so this one is all about your chapter number 8, adjectives. So students, that's all for today. Thank you so much and have a great day. A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am a teacher from Shivaji Group of Institutions, and I welcome you all in the online classes. Students, this is your English literature period, and as we know that we are continuing your first chapter of your second term, so this one is your first chapter from second term, chapter number 5, paper quotes, and this one is a poem, and this poem was written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore means being a poet itself in this poem just describe about an incident. Okay, paper boats, boats means now, paper की कागज की नाव, and boats किसमें चलाते हैं? पानी में, as we know. So let's read out the poem. Day by day I float my paper boats. दिन पर दिन मैं रोज paper boats को float कराता था पानी में, one by one down the running stream, एक एक करके बहते हुए पानी में. In big black letters I write my name, और जो सारी पेपर बोट्स में बनाता उन्हें बड़े बोल्ड लेटर्स में ब्लैक इंक से अपना नेम लिखता. On the other, on them and the name of village where I live, और मैं अपने गांव का नाम लिखता जहाँ पे मैं रहता हूँ उन पेपर बोट्स में बिग ब्लॉक लेटर से. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. और मैं ये आशा करता हूँ कि जब कभी ये पेपर बोट्स कहीं पे लैंड करेंगी, कहीं पे रुकेगी, तो किसी भी स्ट्रेंज सी लैंड पे किसी को ये पेपर बोट्स मिलेंगी, तो वो देखेगा कि इसमें मेरा नाम, मेरा विलेज का नेम लिखा हुआ है, और वो मुझे पहचानेगा कि ये मैंने बनाया है और मैंने इनको रनिंग स्ट्रीम पे छोड़ा है. ओके, I load my boats with Shivli. मैं
वेरी अट्रैक्टिव फ्लावर्स. ओके, मैं अपनी पोट्स को शिवली के फ्लावर से फिल करता. फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन टू होम. और मैं वो फ्लावर्स अपने गार्डन से लेके आता, अपने बगीचे से लेके आता और आशा करता कि दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द dawn will, कि ये जो फूल खिलते हैं सूरज की रोशनी से, ये will be carried safely to the land in the night, कि ये जाए कहीं पे और धरती पर मिल जाए, पानी से हट के ये जमीन पे आ जाए रात होने तक. ओके, this poem is all about the paper boats. Then a boy always try to send out their paper boats in the night. This will be on the land someday before a night, and that paper boats will always filled with shivling flowers. Okay, from this garden. So students, and the poet of this poem is Rabindranath Tagore. So students, we have completed this poem. As we know that reading and explanation are already completed in the audio classes, and this one is the recall session. Okay, so I hope you all have understood very carefully. So students, complete your work and do your best. Thank you so much and have a great day. Hello, good morning students. This is your SST teacher from Shrimad Group of Institutions. We are welcome you all in the online classes. So students, now our quarterly exams are finished and we have completed our first term exam, and in which we have completed 6 chapters of SST. So today we will start the course of second term exam. Okay, so students, take out your book, open page number 50, chapter 7. Chapter name is weather and climate. So today we will read this chapter. Okay, so firstly, we will read about weather and climate. So, weather and climate both are interrelated terms, but there is some difference, which is weather refers to describe the atmospheric condition of a particular day and it changes daily. इसको means weather की वो atmospheric condition होती है जो किसी particular day के लिए, suppose that सुबह यहाँ पर धूप निकली है बट शाम में यहाँ पर बारिश हो रही है, तो सेम दोपहर में धूप है, शाम में बारिश है, मॉर्निंग में वेदर कैसा है, दोपहर में कैसा है. तो इस तरह जो एक पर्टिकुलर डे का या 2-3 दिन का जो वेदर होता है, जो कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ वाइंड्स एंड क्लाउड्स, सो इसको हम वेदर कहते हैं. बट क्लाइमेट इज डिफरेंट. व्हाट इज क्लाइमेट? Climate refers to the weather of large area over a long period of time. Means किसी भी एरिया का, किसी भी लार्ज एरिया का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स काफी लंबे समय तक जो सेम वेदर कंडीशन रहती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. सो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट डेली चेंज नहीं होता, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रहता है. सो जैसे हमारे सीजन होते हैं, ठीक है, समर सीजन में गर्मियां होती हैं, उसके वो चलता है 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स चलता है, उसके बाद हमारा रेनी सीजन आता है तो वेदर चेंज होता है, उसके बाद जब विंटर सीजन आता है तो क्लाइमेट चेंज. तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टर्म्स में जो कंडीशन चेंज होती है वेदर की, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. नाउ वी विल रीड अबाउट सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. सो व्हाट आर सम फैक्टर्स? सो द फर्स्ट फैक्टर इज हाउ फार इट इज फार फ्रॉम द इक्वेटर. मींस एक प्लेस है वो इक्वेटर से कितना दूर है. So we all know that the places which are near to the equator gets the longest sunlight and sun rays. That is why they experience hot temperature, and the places which are far away from the equator they experience cold temperature. So किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, कि वो इक्वेटर से पास में है, करीब है या दूर है. अगर वो इक्वेटर के पास है तो वहां पे सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, हीट ज्यादा होगी, तो गर्मी भी ज्यादा होगी. और अगर वो इक्वेटर से दूर है तो वहां का जो टेम्परेचर होगा वो कोल्ड होगा. नेक्स्ट फैक्टर इज हाउ हाई इट इज. सो इट मीन्स एल्टीट्यूड. ओके, इट इज अबाउट एल्टीट्यूड. व्हाट इज एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड मीन्स हाइट अबव सी लेवल. सो कोई प्लेस है वो जितना ज्यादा हाई होगा वहां का टेम्परेचर उतना ज्यादा कम होगा. सो सपोज दैट हम नीचे एरिया में हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते जाएंगे,
टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ फार इट इज फ्रॉम द सी। मीन्स दिस इज अ फैक्टर, मीन्स कोई प्लेस है वो सी से कितना दूर है। सो ये एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि अगर वो जो प्लेसेस सी के पास होते हैं, समुद्र के पास होते हैं, वहां का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है, क्योंकि वहां से जो समुद्र से जो हवाएं चलती हैं, जो ब्रीज चलती है, उसकी वजह से वहां का टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा हॉट होता है, ना बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। So everything depends on climate of a place, the food we eat, the dress we wear and much more. So हम जहाँ पर रहते हैं, हम जो eat करते हैं, जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, ये सब डिपेंड करता है क्लाइमेट के लिए, क्योंकि समर सीजन होता है तो हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं, विंटर सीजन होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। सेम एज हम फूड वेजिटेबल्स भी सीजनल होती हैं, तो इसीलिए जो हम फूड खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो किसी प्लेस के सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं। ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट सीजन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन्स। So how many seasons are there? There are 4 main seasons. Okay, but here we will read about the first one is summer season. Second one is winter. Third one is monsoon or rainy season. Monsoon or rainy. And the last one is the spring season. Okay, the spring season is also called season of flowers. These are the 4 main seasons. Okay, so in India, variations in temperature, rainfall and monsoon winds result in 3 main seasons: winter, summer and monsoon. The rainy season, the weather condition of a region during these seasons determine the climate of the region. So इंडिया में जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो मेन 3 सीजन्स पाए जाते हैं, मिलते हैं, वो मेन सीजन्स ये हैं: समर सीजन, विंटर सीजन और मानसून सीजन। बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो माइंड्स चलती है उसके अकॉर्डिंग ये 3 मेन सीजन्स हैं। ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट सीजन्स। ओके, फर्स्टली वी विल रीड अबाउट समर सीजन। सो in India, the summer season begins from the middle of March or April and continues till the end of June. So, in South India, it starts becoming hot in March and stays hot till after May. In North India, summer starts in April and continues till June or July. So, mostly जो summer season start होता है वो अप्रैल और मई के मंथ से start होता है, ठीक है। So, समर सीजन मेनली जो है वो मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है। मार्च का भी वेदर जो थोड़ा प्लीजेंट होता है, इतनी ज्यादा गर्मियां नहीं होती है। मई जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल मंथ से स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है जून और जुलाई मंथ तक। और जिसमें कि ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे साउथ के पार्ट में इंडिया के साउथ इंडिया में ये मार्च से ही स्टार्ट होने लगता है, मार्च से वहां पे गर्मी होने लगती है और ये आफ्टर मई तक कंटिन्यू चलता रहता है, गर्मी वहां पे रहती है। और नॉर्थ इंडिया में समर सीजन जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और जून और जुलाई के लास्ट तक चलता रहता है। In summer, it is hot and dry in almost all parts of India, except in the mountainous regions. The sun is very hot and the days are longer than nights. Hot dry winds called blow in the northern plains. Dust storms are so common in the region. So summer seasons में जो weather होता है बहुत ज्यादा hot और dry होता है, ठीक है। और इसी सीजन में हर जगह मोस्टली सारे पार्ट्स में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हॉटनेस होती है, एक्सेप्ट जो माउंटेनियस रीजन होते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पे बने होते हैं, इसलिए वहाँ का वेदर बहुत ज्यादा गर्मी वहाँ पर नहीं पड़ती है। और जो समर सीजन में जो डे होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और नाइट्स होती है वो छोटी होती है। और विंटर सीजन में सेम इसको उल्टा होता है। और जब समर सीजन आता है तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इंडिया के, वहां पे एक हॉट वाइंड्स चलती है जिनको हम लू कहते हैं। और डस्ट स्टॉर्म्स मींस आंधियां भी आती हैं सीजन में, वो भी कॉमन है। The other side of the coastal region have moderate climate due to sea breeze, but due to high humidity, that is high amount of water vapor in the air, the water becomes uncomfortable as it leads to perspiration, sweating, and it takes long time to dry. So northern plains के एरिया में इसका वेदर बहुत ज्यादा हॉट और ड्राई होता है, बट ऑन
अदर साइड जो कोस्टल रीजन है, जो प्लेस जो सी के करीब है, उनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा मॉडरेट होता है, ना वो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है ना वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, क्योंकि वहां पर जो सी से जो ब्रीज जो हवाएं चलती है, समुद्री हवाएं, उसकी वजह से। लेकिन जब ये सी ब्रीज चलती है तो उसमें हाई अमाउंट होता है ह्यूमिडिटी का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो वाइट होती है वो मॉइस्चर से भरी होती है, बिकॉज उसमें वाटर वेपर होता है बहुत ज्यादा। जब हॉटनेस ऑफ समुद्र में सनलाइट पड़ती है तो वहां का जो वाटर होता है वो वेपर में बनकर वो एयर में मिक्स हो जाता है, इसलिए वहां की जो सी ब्रीज होती है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है वाटर वेपर की वजह से, और इसी से पर्सिपिटेशन की प्रॉब्लम, ये स्वेटिंग की जो उनको पसीना आता है उसकी प्रॉब्लम होती है इसी से। Now we will read about the next season, which is rainy season. Okay, so June onwards, moisture-laden winds from the Arabian Sea and the Bay of Bengal start blowing towards the land. They are called monsoon winds. They bring rain in India. This season is called the monsoon. So जून ऑनवर्ड्स, जून के महीने से जो अरेबियन सी हमारा समुद्र है और बे ऑफ बंगाल है, सो इन दोनों सी से मॉइस्चर से भरी हुई जो हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, क्लाउड्स को कॉज करती हैं, ठीक है, जिसको हम उन वाइंड्स को जो मॉइस्चर से भरी हुई जो वाइंड्स जो इन सीज या अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से चलती हैं लैंड की तरफ, इनको हम मॉनसून वाइंड्स कहते हैं। और ये जो वाइंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये इंडिया में रेनफॉल कॉज करती है, क्योंकि जब ये मॉनसून वाइंड्स चलती है तो क्लाउड्स कॉज होते हैं जिससे रेनफॉल होता है, और इसी को हम मॉनसून सीजन भी कहते हैं। In South India, the rainy season starts in June. In North India, it starts towards the end of June or the beginning of July. It continues till September or October. So, South India के जो साउथ पार्ट में है ये रेनी सीजन स्टार्ट होता है जून के मंथ में, और नॉर्थ इंडिया में ये स्टार्ट होता है जून के एंड में और जुलाई के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, और ये कंटिन्यू चलता रहता है सितंबर और अक्टूबर के मंथ तक। The general distribution of the monsoon winds is highly uneven. Some parts of India, such as the western coast and the northeastern states, get very heavy rainfall. Mawsim Ram in the Khasi Hills in Meghalaya receives the highest rainfall in India. So India के कुछ parts में जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट वाले जो पार्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा जो वाइंड चलती हैं वो रेनफॉल कॉज करती हैं, और मेघालय जो स्टेट है वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, और उसी रेनफॉल से जो क्लाउड्स कॉज होते हैं। और मेघालय में जो हमने पढ़ा था एक प्रीवियस चैप्टर में नॉर्दर्न माउंटेन्स में, दैट मेघालय इज द स्टेट व्हिच गेट्स द हेवीएस्ट रेनफॉल एंड खासी हिल्स इज लोकेटेड इन द मेघालय स्टेट, और मेघालय स्टेट में एक विलेज है जिसका नाम है मौसिम नाम, और इस विलेज में सबसे ज्यादा बारिश होती है। The northern plains and southern plateau also receive heavy rainfall, और जो northern plains उत्तरी मैदान है, जो southern plateau है, उसमें भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। The Thar Desert in Rajasthan and the Rann of Kutch receive very less rainfall. The Coromandel coast receives rain in November or December, but the coast of Tamil Nadu remains dry from June to September. Here it rains between November and January. So, Thar Desert जो है desert area के और होता है, desert area has a very little rainfall. So जो Thar Desert है जो राजस्थान में लोकेटेड है, वहाँ की जो वेदर होता है वहाँ बारिश बहुत कम होती है, और जो कोरोमंडल कोस्ट है वहां पर नवंबर और दिसंबर के मंथ में बारिश होती है, और लेकिन जो तमिलनाडु का जो कोस्ट होता है वो जून से लेकर सितंबर तक ड्राई रहता है, वहां पर बारिश नहीं होती, और यहाँ पर बारिश होती है नवंबर और जनवरी के मंथ के बीच में। So students, this is all about rainy seasons. Okay, so now we will read about winter season. November onwards, it starts becoming pleasant. The sun is not so hot and leads to the onset of winter season. The days start becoming shorter and the nights longer. It continues till February or March. December and January are the coldest month in most parts of North and Central India. So, जो नवंबर का जो मंथ होता है वो ही बिगनिंग होता है समर सीजन की, क्योंकि इस विंटर सीजन की, क्योंकि इस टाइम वेदर जो होता है वो बहुत ज्यादा प्लीजेंट होने लगता है, क्योंकि ना ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत प्लीजेंट सा वेदर होता है, और जो डेज
called the western disturbance cause light rainfall in the plains and snowfall in the mountains. So मीटर सीजन में वेस्ट डायरेक्शन से कुछ पॉइंट्स चलती हैं जिनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट्स जो हैं ये कॉज करती हैं रेनफॉल को प्लेन्स में और स्नोफॉल को माउंटेन में। जब ये पॉइंट्स चलती हैं जो प्लेन्स के जो एरियाज होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा वहां पर बारिश होती है और जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहां पर स्नोफॉल होता है जिससे ठंड और बढ़ती है। Winters are very cold in the Himalayas. Many places receive snowfall. The northern plains are cold. The cold decreases as we travel to the southern part of India. The coastal plains are pleasant during winter. So, winters are very cold in Himalayas. हिमालय जो माउंटेन्स जो हिमालय रीजन है वहाँ का जो विंटर होता है बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। So we all know that हिमालय जो माउंटेन्स है उसके जो मोस्टली जो पीक्स हैं वो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब विंटर सीजन आता है तो वहां पर स्नोफॉल भी होता है तो वो और ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो भी कोल्ड होते हैं और इसी तरह जो हम देखते हैं जो मोस्टली हर पार्ट्स में कोल्ड होते हैं, लेकिन जब हम साउथर्न पार्ट इंडिया के साउथर्न पार्ट में जैसे जैसे हम ट्रैवल करते जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, कोल्ड डिक्रीज होती है, क्योंकि वहां का साउथर्न पार्ट का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा है बिकॉज ऑफ द सी, बिकॉज साउथर्न पार्ट वैसे ही पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, दैट इज व्हाई। Spring season. Now we will read about the last season, which is the spring season, or it is also called the season of flowers. So this season comes after the winter and before the beginning of summer. It is the most pleasant time of the year, as it is neither too hot nor too cold. Many trees bear new leaves and flowers during spring. So ये जो season होता है spring season और the season of flowers, ये आता है विंटर के बाद में और समर सीजन के पहले जो कर्टन टाइम होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है। और ये सबसे प्लीजेंट टाइम होता है ईयर का, क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा नॉर्मल प्लीजेंट रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, और इसी सीजन में बहुत सारे ट्रीज पे नई नई लीव्स आती है और फ्लावर्स खिलते हैं, इसीलिए जो वेदर होता है बहुत अच्छा लगता है। So students, now this chapter is finished. I hope that you have understood what I am explaining in this chapter. So students, now note down your